नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के बायो फैकल्टी मिस्टर देव इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स सर। थैंक यू सर। इस वक्त लैब में हम बैठे हुए हैं, तो लैब में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड की जाती है टू द स्टूडेंट्स हियर? In NPRS, what we are seeing presently is that there is a state of art labs which are available for the students. As you can see around, all the requisite things which are required for a biology lab, be it microscopes, be it the reagents, be it the infrastructure. It's a wonderful facility that is being provided by NPRS school to the students, and I'm sure they're going to benefit from it. डेफिनेटली सर। जब भी स्टूडेंट्स को स्पेशली दिखाया जाता है, लैब में प्रैक्टिकल क्लासेस ली जाती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर, आई वुड वांट टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एज वेल एज द थ्योरी पार्ट, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है एंड हाउ डू यू मेक थ्योरी पार्ट इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स हियर? Right, biology is a subject which I teach, and I've been teaching for almost now 24 years, if I can count it. Now, it is wonderful out here in NPRS because the teaching learning process, all the things which are required for a teacher, be it smart classes, be it the IPN, the panels, the digital panels. So the teaching learning has gone to a different level. Like 24 years back when I used to teach, and presently when I am teaching right now, it is a sea of change, as you can see. So the NPRS provides the necessary infrastructure to conduct digital classes, which we conduct almost every day. And as I just stated few minutes back, that the lab that NPRS offers, it's a state of art, and learning by doing is possible out here. And on top of that, very often science exhibitions are conducted out here in NPRS, and that adds on to their skills of practical. Science is definitely a practical based subject, biology. So it's both, the theory as well as the practicals. Okay, thank you so much sir for joining there with us. Thank you, sir. Thank you so much. मिस्टर सोमनाथ सर इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी को बता दें, ही इज द फिजिक्स फैकल्टी हियर एट नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। सबसे पहले तो आई वेलकम यू टू सिलीगुड़ी टाइम्स सर। Thank you, ma'am. My name is Somnath sir, and I am here. I am in this profession from last 15 to 16 years. My subject is physics. What I realize from this my profession that physics is a very interesting subject, and it's very conceptual. So you need to go through proper concept. If your concept is very clear, then it will be very easy for student to understand. And for that, I think lab is very important. Because from the lab we can show them practically what is going on, and in this school our lab facilities are really very good and very advanced. So we show them what is going on in their CBSE curriculum, and practically we show them also what is going on. नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के केमिस्ट्री लैब में इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं अंजन घोष सर। बता दें, ही इज द केमिस्ट्री फैकल्टी हियर एट नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। तो क्योंकि हम लैब में खड़े हैं, तो लैब से रिलेटेड जितने भी सवाल है मैं सर से पूछना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ सिलीगुड़ी टाइम्स में। धन्यवाद जी। सर, अगर हम बात करें लैब की, तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में लैब की जरूरत काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितने भी एसिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर उसको प्रैक्टिकली हम यूज करें तो काफी अच्छा हो जाता है। तो कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन से फैसिलिटीज है जो लैब में बच्चों को दी जाती है यहाँ पर बेसिकली जो है, जो भी वो थ्योरी में पढ़ते हैं बचपन से, जो भी देखते हैं, जैसे हम लोग in our regular life we generally use phenyl, okay, and different types of chemicals, different acids, okay. So ये टाइप के जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, whatever we are learning in the theory, that is actually useful in our daily life. And as you see that all the students, they are experimenting the same thing, okay, different types of acids, bases, and different gases. Some of them may be corrosive or harmful, some of them are not that much harmful.
तो इसी तरीके से हम लोग एक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को वो एंथुजियाज्म मिले कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये रियलिटी से अलग नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने में कठिनाइयां होती है, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों को आसान बनाते हैं हमारे विनोद सर। जी हाँ, आप सभी को बता दें, ही इज द मैथ्स फैकल्टी हियर एट नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिलीगुड़ी टाइम्स में। थैंक यू मैम। सर, आप किस तरीके से अपने बच्चों का जो मैथ्स का घबराहट है, एक बच्चों को मैथ्स को लेकर घबराहट होती है, तो कैसे आप उन्हें कॉन्सेप्ट एक आसान तरीके से आप समझाते हो उन्हें? यस मैम, बच्चों को एट फर्स्ट की मैथ से डर तो लगता है, लेकिन क्या है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले उनका डर हटाते हैं और एक टॉपिक को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करवा के हम लोग अच्छे तरीके से उसको 1 by 1 फार्मूला एट फर्स्ट लर्न करवाते हैं। फिर उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हमारा है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको मेमोराइज कैसे रख सके फार्मूला को, उसका भी ट्रिक दिया जाएगा। देन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको विजुअलाइज और ग्राफ से हम लोग उसको सॉल्व करके दिखाएं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे के लिए मैथ क्या हो जाता है, फन जैसा लगने लगता है, बहुत आसान हो जाता है और बच्चे इजीली नीट एंड जेई जो है, जेई में आराम से जेई क्रैक करते हैं। और लास्ट 5 ईयर्स जो मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा है, 5 to 7 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने जेई क्रैक किया है और 2 स्टूडेंट एडवांस भी क्रैक करा है यहाँ से, और बच्चे बोर्ड 100% बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके सर, जैसे कि आपने जेईई के बारे में कहा, एडवांस के बारे में आपने बात की, तो क्या नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाता है? यस मैम, नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल से पहले मैं इंडिया के जो टॉप ब्रांड इंस्टीट्यूट है वहीं पे मैं पढ़ा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। लास्ट 7 ईयर से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और बच्चे अच्छी जगह प्लेस्ड हो रहे हैं। नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल के बारे में तो खैर आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में सेकंड बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। आप सभी को बता दें, हॉस्टल के हेड इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजू सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स सर। Thank you so much, Siliguri Times, and I'm honored that you people have come here, and I'm pleased to take you around the dining hall because it's the lunch time going on. Okay, sir. So you can see the students how we serve the food, Definitely, and you can get the feedback from the students also. Okay, sir. Oh wow, this is a huge hall. Right now we are having the lunch. No? Yes, sir. The lunch break is there, and today we are serving both non-veg as well as veg to the students. ओके, तो यहाँ पर जो वेजिटेरियन बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। वेज फूड इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली एज वेल एज द नॉन वेज फूड इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। Exactly. We take very good care regarding this because we have pure veg students also. So while we serve food, the food is served in a different way, in a different corner. And when the students they sit for the lunch also, veg is different. You can see the vegetarians are different, sitting differently, and non-veg are sitting differently here. If we talk about the capacity of the students, सर अगर हम लोग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो एक बार में कितने बच्चे यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं? We're almost on 250 students. Okay. So 250 students can sit here. I can sense the ambience here is quite good, and especially the lighting is also done in a very chill and a relaxed way. Exactly. And we have taken care, regarding the summers also. We have this central AC system going on here. And the students are quite happy. They are enjoying the food. And as you see, you can see that. डेफिनेटली सर, आप एक बार नजर घुमा के देखिए। आप सभी को बता दें 250 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर एक बार में बैठकर खाना खा सकते हैं। आप सभी को बता दें, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके बच्चे को क्या हॉस्टल में वेज अलग से खाना मिलेगा या नहीं, तो आप सभी को बता दें यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में वेज काउंटर अलग है, नॉन वेज काउंटर अलग है। काउंटर की ओर हम चलेंगे और साथ में क्या किस तरीके से यहाँ पे खाना प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार आप नजर घुमा के देखिए कि बच्चे काफी ज्यादा अपने मील को एंजॉय कर रहे हैं। नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के ह्यूमैनिटीज सेक्शन से इस वक्त हमारे साथ में दिशा मैम जुड़ी है। बता दें, शी इज ज्योग्राफी फैकल्टी हियर एट NPRS। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स मैम।
Very good afternoon. This is Disha Shah Chaudhary from North Point Residential School, and I am the geography faculty over here, PGT Geography. ओके मैम, मैम अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की, तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन ह्यूमैनिटीज स्पेशली ऑफर किया जाता है इन एनपीआरएस स्कूल? Humanities basically like provides the student with a very diverse combination. For example, if we talk about English, history, geography, all these are major subject, and apart from this, if we look into, then we have subject combination of political science, economics, then along with it we have language like Hindi. Then apart from that we have computer science also, so the students who are interested in computer science, they can opt for computer science, and many more other subjects are there according to the needs and choice of the student. We provide them over here. ओके मैम, अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या है, अगर हम आर्ट्स लेके पढ़ेंगे, सो व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस दैट वी हैव ओपन इन फ्रंट ऑफ अस? See, future all the three streams are very much diverse, and if we talk about humanities is very much diversified in different fields. For example, first of all, let's talk about the all-round development of the student. Like the students, when they are taking humanities, they not only get bookish knowledge, but along with it they get their all-round development, they get their moral development, they get their social development as well. And regarding the future scopes, the students can go for different kind of competitive exams like UPSC, SSC, IPS, IAS and all. And apart from that, different research related work also they can go. For example, if we talk about geography, then different weather forecasting department is there, then climatological department is there. So the students they have a great scope for research, methodological, statistical analysis and all these things are there in humanities. Okay, so thank you so much ma'am for joining with us and giving insights about the subject in total. Thank you so much. दीपांजन सर इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं और हम लगातार आपको एनपीआरएस के बारे में बता रहे हैं, टीचर्स के बारे में बता रहे हैं, फैकल्टीज से बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ दीपांजन सर है, बता दें ही इज बिजनेस स्टडीज फैकल्टी हियर एट एनपीआरएस स्कूल। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिल्वी टाइम सर। Thank you so much. I am Dipanjan Kushari. I've been teaching out here for the past 12 years and it has been a great experience. Yes. ओके सर, एक सवाल पूछना था कि बच्चे अगर कॉमर्स लेंगे, सो व्हाई शुड दे कम टू एनपीआरएस स्कूल फॉर देयर कॉमर्स कोर्स? Okay. Like when it comes to commerce, it's what it is like at the present moment. We cannot say any of the streams is more important, because there was a time when we used to think that a particular stream, say if it is considered with say science is always taken as something which is very it's supposed to be superior compared to commerce, but ऐसा नहीं है, क्योंकि say for example someone takes science and becomes a doctor, but the doctor will be working under a nursing home, and the owner of the nursing home, he is a businessman. Yeah, when it comes to writing, even writers also, let's me talk of arts also. When the writers, they are writing say a poem or a story, every writer's dream is to get his story published. So publisher wala to obviously they come from commerce. So it's not about the stream at present, it is about the liking, what the students like actually, that because it is it has what our society also has changed to a great extent, and on the other hand what we believe in at the moment is marks. And why NPR is because see, we are focusing on marks. Our results have been very good, and we are trying our level best. We have wonderful faculty members, and we are trying our level best to give the maximum to the students, because at the end of the day it's we cannot change anything, it's we have to move on with this world. And today the first question we are asked, beta what was your percentage, beta aapka percentage kitna tha? So I think it's not only about commerce, arts or science, it's about the different specializations we are giving, and I think the students are pretty comfortable with their specializations, and if they opt for NPRS, of course we focus on academics, and of course our results
They are doing really well, and it is the results, our result, which is speaking. I feel so. That's why I think they should go in for NPRS. Yes. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. सीए बालकृष्ण सर इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं। तो क्योंकि कॉमर्स की बात हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जाना जाए। जब बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो उनके जहन में भी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करने की जिज्ञासा रहती ही है, एंड वो जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या करियर ऑप्शन उनको मिल सकता है। तो सर से बेहतर और कौन होगा हमें इस बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले तो वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स सर। जी मैम आई एम गेस्ट फैकल्टी आउट हेयर एट एनपीआरएस, और मेनली इसी पर्पस के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है कि बच्चे 12 के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 12 पास करने के बाद दे हैव टू अपियर फॉर CUT एग्जामिनेशंस। और अगर वो CA कर रहे हैं तो CA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन या CMA फाउंडेशन, वो अगर कॉमर्स फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी इज वन सच सब्जेक्ट जो उनके साथ हमेशा रहेगा। तो मेरा रोल यहाँ पे यही है कि मैं उनमें जो अकाउंट्स को लेके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मैं ला सकूं, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अकाउंट्स एक कंसेप्चुअल पेपर है, रेदर वो उसको एक फॉर्मूला या मैथमेटिक्स बेस्ड पेपर उसको मानते हैं। तो माई रोल इज दैट कि उनको मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला के उनको मैं फ्यूचर के लिए, अगर वो फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनका अप्रोच क्या होगा। तो बेसिकली मैं उनको कैरियर बेस्ड गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो एक तरीके से वी आर वर्किंग इन अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे अलॉन्ग विथ क्लास 12 एग्जामिनेशंस वी वांट टू प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर। एनपीआरएस स्कूल के हॉस्टल के बारे में तो खैर मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल के सेकंड बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एनपीआरएस स्कूल में। और यहाँ पर इस वक्त गर्ल्स हॉस्टल में हम बैठे हुए हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज दिव्या मैम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हम गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी जरूर लेते हैं। तो वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स मैम। हेलो मैम। मैम, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस हिसाब से यहाँ पर गर्ल चाइल्ड का जो है ध्यान रखा जाता है। कि गर्ल्स हॉस्टल हम लोगों का ये दो है, एग्जीक्यूटिव एंड स्टैंडर्ड वन, and in every dormitories the wardens are staying with them only with the girls. ओके, तो कह सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल चाइल्ड का काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न पेरेंट्स के जहन में यही रहता है कि अगर हम अपने बच्ची को बाहर भेज रहे हैं, बी इट अ हॉस्टल ऑल्सो, तो सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न बन जाता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे होंगे, सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एंड यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा होमली एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बच्चे होम सिक बिल्कुल भी महसूस ना करें। हॉस्टल की हम बात कर ही रहे हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल हमने आपको दिखाया। अब हम आपको लेकर चलते हैं बॉयज हॉस्टल की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल, बॉयज हॉस्टल भी एनपीआरएस स्कूल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जरूर बात करना चाहेंगे अर्नव सर से। बता दें, ही इज द रेजिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। तो हेलो एंड वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स सर। थैंक यू। Let's proceed towards the hostel now. डेफिनेटली सर। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि बॉयज हॉस्टल भी आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप दूर दराज से भी आते हो, नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ना है, तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज काफी यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स ही नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जैसे कि नेपाल, भूटान से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो दिस इज हाउ यू एंटर। और अब हम आपको लेकर चलते हैं एरिया की तरफ। लॉबी एरिया है जहाँ पे हम असेंबली कंडक्ट करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं या ब्रीफिंग देते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय वी हैव द हॉस्टल ऑफिसेस आउट हियर। लेट्स प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप, ये कैटेगरी है हमारा। This is the executive hostel. Basically, how it looks like: single beds given to the single students along with the study table. उनके personal use के लिए they have the wardrobes given, single cabinets.
The room is completely air conditioned. So we are accommodating around 10 of them in this room. ये जूनियर सेक्शन है बेसिकली, और जूनियर सेक्शन में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जिसमें एक सिंगल बेड कैटेगरी है, एक मैं आपको अभी दिखाऊंगा. वी हैव बंक बेड एज वेल. प्लीज कम. सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक सेक्शन आपने सिंगल बेड का देखा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंक बेड कंसेप्ट है फॉर द जूनियर वंस. एक बेड में आप देख सकते हैं इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन्ड. सेफ्टी भी देखा, मतलब उसको ही मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है, और फॉलोड बाय दिस स्टडी टेबल फॉर द इंडिविजुअल्स, एंड अगेन द सेम कैबिनेट्स हैव कम नाउ. बच्चों के 10th के एग्जाम्स तो खैर अब होने ही वाले हैं, और साथ में अगर हम बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोच भी रहे होंगे कि कौन से स्कूल ऑप्शन को वो चूज कर सकते हैं या कौन से स्कूल में जाके वो अपने 11th के लिए एडमिशन ले सकते हैं. तो इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल से नवीन मैम जुड़ी हैं. बता दें शी इज द एडमिशन काउंसलर एज वेल एज द इंचार्ज ऑफ द एडमिशन पार्ट. तो मैम से हम जरूर जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि क्लास 11 में अगर आपको एनपीआरएस स्कूल का हिस्सा बनना है तो किस तरीके से ये होगा. सबसे पहले वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स. Thank you so much, ma'am, for having me. Yes, ma'am, please tell me. एडमिशन किस हिसाब से यहाँ पे क्लास 11 का लिया जाएगा? मैम एक्चुअली सी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना मैम, क्लास 11 के लिए एज यू नो द प्री बोर्ड्स आर ऑलरेडी रनिंग अप, सो दे आर ऑलरेडी वेरी टेंस फॉर द बोर्ड्स. सो हम क्या कर रहे हैं मैम, अभी फिलहाल वो लोग फॉर्म भर सकते हैं मैम. दे कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑल्सो इफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम फार अवे, दे आर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशंस. और जो बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल में आके एक बार विजिट करके दे वांट टू सी, बिकॉज मैम देयर आर वेरिएशन. अब कोई डे स्कॉलर के लिए आ रहा है, कोई बोर्डिंग के लिए आ रहा है मैम, ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि बच्चे आके, पेरेंट्स आके एक बार देख सकते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारा अवेलेबिलिटी है 3 स्ट्रीम्स का ही मैम, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. अब हम बच्चों का क्या है कि वी वांट टू गो फॉर साइंस, वी वांट टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज, वो खुद चूज करके आते हैं अपना सारा कुछ स्ट्रीम. बट व्हाट वी डू इज मैम अंटिल अनलेस वी डोंट सी द प्री बोर्ड्स रिजल्ट वी कैन नॉट अलोकेट देम विद द स्ट्रीम्स. पहले हमको देखना होगा बच्चों का, क्योंकि ऑलरेडी सो मेनी फॉर्म्स हैज बीन गॉन अप. इट्स ऑलरेडी 300 फॉर्म्स हैज बीन गॉन. नाउ आई कैन नॉट अकोमोडेट एवरी चिल्ड्रन इन साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स मैम. सो अकॉर्डिंगली हम बच्चों को देंगे मैम, बट seeing their pre-boards result. But at the time they can take the form online also, offline they can visit school and take the forms. ओके, तो काफी इजी प्रोसेस है. अगर आपको क्लास 11 में एनपीआरएस स्कूल आप सोच रहे हो आने का, सो द एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल. ऑनलाइन भी आप ऑप्ट कर सकते हो एंड एज वेल एज आप इन स्कूल, इन कैंपस विजिट करके भी आप यहाँ पर एडमिशन फॉर्म ऑप्ट कर सकते हो. तो नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में हम पहुंचे हुए थे. यहाँ की तमाम जानकारी हमने आप सभी तक पहुंचाई है, और इस वीडियो के दौरान हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके के फैसिलिटीज यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में आप सभी को मिल जाएगा. एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं क्लास 11 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज फॉर्म फिलअप हो चुका है. और आपको भी अगर चांस चाहिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो या चाहे कॉमर्स ही क्यों ना हो, तीनों ही ऑप्शंस के जितने भी टीचर्स हैं हमने उनसे बात की है, और साथ में आपको इनसाइट देने की भी हमने आपको इस वीडियो के दौरान कोशिश की है. फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे सिलीगुड़ी टाइम्स.